हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 किया होगा. नाउ वी कम टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, question 3 solution. The question was a particle of mass m and charge q is projected in xz plane with the speed u and projection angle theta as shown in the figure. Okay, see, x, z, and this coordinate we have what, y. It is outside the plane of paper. यहाँ से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया with the speed u as shown in the figure. This angle we have theta. So this component ux we have what, u cos theta, and what about this component? This one is u sin theta, and the particle has been projected within the uniform magnetic field. The value is given b naught k cap. Okay, so magnetic field is directed along the positive z coordinate. Okay, magnitude of the field is b naught. Okay, now see, in the magnetic effect of current you have done, if the velocity of charged particle and magnetic field are not perpendicular, or if any component of the velocity vector is perpendicular to the magnetic field, then the charged particle will be tracing what, the helical path. तो यहाँ पहले फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन देख लें. तो magnetic field is in the upward direction and the velocity perpendicular is u cos theta. So force is outside the plane of paper. Okay, so charged particle will be experiencing force along the positive y coordinate, and along the y coordinate we have center of the circular path. Okay, so this particle traces circular path like this. Okay, it will be tracing a circular path like this, but due to the u sin theta, that is what, uz, it has negative sign, the particle is shifted in what, the negative z coordinate. So this moving charge particle tracing circular path shifts in what, the negative z coordinate. So finally the charge particle traces what, the helical path. Okay, so this charge traces helical path. इस तरीके से चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ ट्रेस कर रहा होगा. ओके, अब ये दिया है कि in tracing the height h, okay, suppose this height we have what, h. यहां से यहां तक ये हाइट हमने क्या कंसिडर कर लिया, h कंसिडर कर लिया, this height h. Okay, so what we have given, in falling height h along negative z coordinate particle takes n1 number of turns. तो कितने टर्न्स पार्टिकल ने लिए यहाँ पे, n1 टर्न्स लिए. तो नंबर ऑफ टर्न्स टेकन इज व्हाट, n1. ओके, तो रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ इज सपोज व्हाट, r. तो ये कॉन्सेप्ट आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट में किया हुआ है. मूविंग चार्ज पार्टिकल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, हेलिकल किस कंडीशन में करता है ये भी आपको पता है. ओके, नाउ सी how to find the value of what, n1 number of turns. okay, तो ये पार्टिकल t टाइम में, सपोज यहाँ टाइम इज 0, जब यहाँ आया तो ये टाइम इज t, ये 2t, ये टाइम इज व्हाट, 3t एंड सो ऑन. ओके, तो n1 टर्न्स में इसने कितना टाइम लिया है, t1 टाइम लिया है. सपोज टू सी टाइम टू ट्रेस वन सर्कुलर टर्न t1, that we have what, 2 pi m by qb. ये हमारा फिक्स है. एक सर्कुलर टर्न में कितना टाइम लिया इसने, t. सपोज ये टाइम t1 है, t1, 2t1, 3t1, तो ये हमने t1 कंसिडर किया. ओके, एंड h हाइट में कितना टाइम लिया ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो व्हाट इज नंबर ऑफ टर्न्स, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स. मेनली हमें नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करना है. तो पिच का वैल्यू वी में कैलकुलेट हुए हियर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच, पिच इज the velocity along the
magnetic field line or in the direction of magnetic field parallel or anti-parallel. So pitch is equal to, it is tracing pitch due to what, u sin theta component. So it is u sin theta into what, time t. The value of pitch is equal to, we have u sin theta into 2 pi m by qb. ओके, ये पिच का वैल्यू है हमारा, एंड हाइट वी हैव गिवन व्हाट, h. तो नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे जो है 1 पिच, 2 पिच, 3 पिच एंड सो ऑन अप टू व्हाट वी हैव n पिच. तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी h डिवाइडेड बाई द वैल्यू ऑफ पिच. ओके, दैट इज h बाई दिस वैल्यू, दैट इज 2 पाई mu sin theta by qb, or you get the result n1 is equal to qbh divided by 2 pi mu sin theta. तो ये मैग्नेटिक फील्ड में h हाइट ट्रेस करने में इसने कितने टर्न्स लिए, n1 टर्न्स लिए. अब क्या दिया है, नाउ द सेम पार्टिकल हैज बीन केप्ट इन, यहाँ पे जो है ये स्पेस इज ग्रेविटी फ्री, ये दिया हुआ है, दिस स्पेस वी हैव व्हाट, ग्रेविटी फ्री. अब इस पार्टिकल को हमने, जो यहाँ पे रेडियस ट्रेस कर रहा है, इक्वल रेडियस का हमने एक सिलिंड्रिकल सरफेस लिया, स्मूथ सिलेंडर लिया. तो वी ट्रेस सिलिंड्रिकल सरफेस, स्मूथ सिलिंड्रिकल सरफेस, ये हॉलो सिलेंडर है ऑफ द इक्वल रेडियस एंड द इक्वल हाइट. ओके, इक्वल हाइट का और इक्वल रेडियस का हमने एक सिलेंडर लिया. अब यहाँ हमने r कैलकुलेट नहीं किया है, तो वी मे गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट r. तो r वी हैव व्हाट, mv बाई qb. तो mv नॉर्मल डिवाइडेड बाई व्हाट, qb. तो व्हाट इज v नॉर्मल हियर, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वी हैव व्हाट, u cos थीटा. तो दैट इज व्हाट, mu cos थीटा बाई qb. दैट मीन्स इसी रेडियस का हमने क्या लिया है, सिलेंडर लिया है, एंड अ पार्टिकल हैज बीन प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इनर सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किया लाइक दिस विद स्पीड u. यहाँ हमने u स्पीड से एंगल पे प्रोजेक्ट किया था और वहाँ u टेंजेंशियल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया. नाउ ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी वी हैव गिवन, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड को हमने स्विच ऑफ कर दिया है. नाउ ड्यू टू ग्रेविटी चार्ज पार्टिकल ट्रेसेस व्हाट, सर्कुलर पाथ, बट ड्यूरिंग the motion due to gravity it falls in the downward direction and again it comes, यहाँ से प्रोजेक्ट किया जस्ट नीचे, ओके, वर्टिकल लाइन में. जैसे ये पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज Q पॉइंट से आउट हुआ और यहाँ तक ये करने में, आउट होने में इसने कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए, n2 लिए. ओके, तो n2 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो अगर ऑब्जर्वर इस पोजीशन पे देखें तो इस ऑब्जर्वर के लिए पाथ इज व्हाट, सर्कुलर. यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया था u स्पीड से, तो u स्पीड से कितना रेडियस ट्रेस कर रहा है, सरकमफ्रेंस ले रहा है 2 पाई r. रेडियस इज r, वी हैव टू टेक दिस रेडियस ओनली. इसी रेडियस का ये हमने सिलिंड्रिकल सरफेस लिया है स्मूथ. तो यहाँ टाइम कितना हो गया, टाइम टू ट्रेस वन सर्कुलर टर्न, दैट इज व्हाट, 2 पाई r बाई u. ओके, अब ये पार्टिकल ग्रेविटी के कारण इट इज फॉलिंग डाउन. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y कोऑर्डिनेट वी हैव व्हाट, 0. तो h हाइट फॉल करने में हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम इसने कितना लिया, t2. ओके, तो टाइम टू ट्रेस द हाइट h इज इक्वल टू ui वी हैव 0, तो इट इज हाफ t स्क्वायर. तो वी गेट t2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g. तो एक टर्न में हमारा टाइम है 2 पाई r बाई u और टोटल हाइट ट्रेस करने में कितना टाइम है, t2. तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ कितना लिया इसने, t2 डिवाइडेड बाई t2. ओके, दैट इज अंडर रूट 2h बाई g डिवाइडेड बाई 2 पाई r बाई u. तो व्हाट इज द रिजल्ट वी हैव, इट इज u बाई 2 pi r under root 2h by g. Okay, now in place of r you have to place what, this value. Okay, it is equation 2. अब पूछा है
what is the value of n1, ratio of n1 and n2. okay, so we have n1 by n2. now n1 की जगह हमने वैल्यू पुट किया, it is qbh by 2 pi mu sin theta, and in place of n2 we have what, u by 2 pi r n2 under root 2h by z. 2 pi कैंसिल हो गया ये हमारा, ओके, एंड इसको आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके आपके पास जो भी रिजल्ट है, मैंने थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यू इज डिफाइन, एंड रेडियस का वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने पुट नहीं किया है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, रेडियस का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करना है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, बिल्कुल सिंपल आ जाएगा, और जब आप सॉल्व करेंगे तो गेट n1 by n2 इज इक्वल टू व्हाट, 5. पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट दिस रिजल्ट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन को मैंने ब्रेक किया है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कॉन्सेप्चुअली जाना है, जो भी स्टेटमेंट है आप स्टेटमेंट को जो है फ्रेम करते जाएं और ड्रॉ करते जाएं, ठीक है, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट। पहले देख के क्वेश्चन परेशान नहीं होना है। ओके, तो इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। ओके,